Tradition 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. The spiritual substance of anonymity is sacrifice, because AA's 12 traditions repeatedly ask us to give us personal desires for the common good. We realize that the sacrificial spirit, well symbolized by anonymity, is the foundation of them all. It is willingness to make these sacrifices that gives people their high confidence in our future. But in the beginning, anonymity was not born of confidence. It was the child of early fears. Our first nameless groups of alcoholics were secret societies. New prospects could find us only through a few trusted friends. The bare hint of publicity, even for our work, shocked us. Though ex-drinkers, we still thought we had to hide from public distress and contempt. When the Big Book appeared in 1939, we called it Alcoholics Anonymous. Its foreword made this revealing statement: it is important that we remain anonymous because we are too few at present to handle the overwhelming number of personal appeals which may result from this publication. Being mostly business or professional folk, we could not well carry on our occupations in such an event. Between these lines, it is easier to read or fear that large numbers of incoming people might break our anonymity wide open. As AA groups multiplied, so did anonymity problems. Enthusiastic over the spectacular recovery of a brother alcoholic, we'd sometimes discuss these intimate and harrowing aspects of his case meant for his sponsor's ear alone. The aggrieved victim would then rightly declare that his trust had been broken. When such stories got into circulation outside of AA, the loss of confidence in our anonymity promise was severe. It frequently turned people from us. Clearly, every AA member's name and story too had to be confidential if we wished. This was our first lesson in the practical application of anonymity. Over to you, Lucky ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है और एक के तत्वों पर आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अपना आखिरी ट्रेडिशन 12, उसका जो चंदू ने पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद। अनामिकता हमारी सभी परंपराओं की आध्यात्मिक नींव है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना चाहिए। अनामिकता का आध्यात्मिक सार त्याग है, क्योंकि एक ही 12 परंपराएं बार बार हमसे सामूहिक भलाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ने को कहती है। हम समझते हैं कि यह त्याग भाव, जिसका श्रेष्ठ प्रतीक अनामिकता है, सभी परंपराओं की नींव है। इन्हीं त्यागों के कारण एक ही सिद्ध इच्छा लोगों में हमारे भविष्य के प्रति गहरा विश्वास जगाती है। लेकिन शुरुआत में अनामिकता विश्वास से नहीं जन्मी थी, वो हमारे शुरुआती डर की संतान थी। हमारे पहले बिना नाम वाले शराबियों का समूह को हम गुप्त समाज थे। हम बिना नाम वाले शराबियों के समूह के नाम से जाने जाने वाले गुप्त समाज थे। नए आने वाले सदस्य हमें केवल कुछ भरोसेमंद मित्रों के माध्यम से ही ढूंढ सकते थे। हमारे काम के लिए भी प्रचार का थोड़ा सा संकेत हमें चौंका देता था। हालांकि हम पीना छोड़ चुके थे, फिर भी हमें लगता था कि जनता के अविश्वास और तिरस्कार से छिपकर ही रहना पड़ेगा। आगे लिखता है, बिल जब 1939 में बिग बुक अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रकाशित हुई तो हमने उसका नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस रखा। उसकी प्रस्तावना में
यह महत्वपूर्ण कथन दिया गया था, यह आवश्यक है कि हम अनाम रहें, क्योंकि वर्तमान में हम इतने कम हैं कि इस प्रकाशन के परिणाम स्वरूप आने वाली भारी संख्या में व्यक्तिगत अपीलों को संभाल नहीं पाएंगे। चूंकि हम में से अधिकांश व्यवसायी या पेशेवर लोग हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने व्यवसाय जारी नहीं रख पाएंगे। इन पंक्तियों के बीच से आसानी से पढ़ा जा सकता था कि हमें डर था कि बड़ी संख्या में आने वाले नए लोग हमारी अनामिकता को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ए के समूह बढ़ते गए, वैसे वैसे अनामिकता की समस्याएं भी बढ़ती गई। किसी शराबी भाई की अद्भुत रिकवरी से उत्साहित होकर हम कभी कभी उसके मामले के बहुत निजी और दर्दनाक पहलुओं पर चर्चा कर बैठते थे, ऐसे पहलू जो केवल उसके स्पॉन्सर के कानों के लिए थे। जब वो व्यक्ति यह कहकर सख्ती से विरोध करता कि उसका विश्वास तोड़ा गया है, और जब ऐसी बातें ए के बाहर फैल जाती, तो हमारे अनामिकता के वादे पर लोगों का भरोसा गंभीर रूप से कम हो जाता। अक्सर लोग इसी कारण हमसे दूर हो जाते थे। तो इस अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि हर ए सदस्य का नाम और उसकी कहानी भी पूरी तरह गोपनीय रखनी चाहिए, यदि वह ऐसा चाहता है तो। अनामिकता के व्यवहारिक प्रयोग का यह हमारा पहला पाठ था। थैंक यू। ओवर टू यू पुष्कर। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय पूषण। हमारे ट्रेडिशन के डिस्कशन के इस अंतिम चरण में सभी का स्वागत है। तो आज 12वां ट्रेडिशन हमारा पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलो, ये ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो पहले एक दफा देख लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म में कहता है, एंड फाइनली वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिलीव that the principle of anonymity has an immense spiritual significance। और अंतिम चरण में हम जो सदस्य है इस संगठन के, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, हमारा विश्वास है कि हमारा जो अनामिकता का जो तत्व है उसमें बहुत गहरी आध्यात्मिकता छिपी हुई है। इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर टू प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे तत्वों को व्यक्तियों के पहले रखा जाना चाहिए। दैट वी आर एक्चुअली टू प्रैक्टिस अ जेन्युइन ह्यूमिलिटी। और हमने खाली दिखावा नहीं, लेकिन सही मात्रा में, सही मायने में अपने नम्रता या ह्यूमिलिटी का पालन करना चाहिए। दिस टू द एंड दैट आवर ग्रेट ब्लेसिंग्स में नेवर स्पॉइल अस। ये इसी जरिए हमारा ये जो हमारे को मध्य मुक्तता का ये जो गिफ्ट हमें मिला है, ये जो ब्लेसिंग हमें मिला है, ये जो नम्रता का जो नया रास्ता हमें मिला है, ये हमें कभी भी अपने रास्ते से भटकने ना दे। दैट वी शैल फॉर एवर लिव इन थैंकफुल कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिम हु प्रिसाइड्स ओवर अस ऑल। ताकि हम हमेशा, हमारे ऊपर जो कृपा हुई है और जो ईश्वर का आधिपत्य हम सब पे ऊपर चलता है, इसकी कृपा में हम लोग बने रहे। तो दोस्तों, ये है हमारा 12वां ट्रेडिशन, जो फोर्सफुली बताता है कि अनामिकता का कितना भी हम लोग पालन करें, ये कम नहीं हो सकता। कितना भी महत्व जो बताए, तो ये कम नहीं हो सकता। और व्यक्तियों से हमेशा तत्वों को ही आगे बढ़कर रहना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर जैसे बताया गया है कि शुरुआत के हमारे जो एए के समूह थे वो एक सीक्रेट सोसाइटी जैसे रहते थे। आप सभी जानते हो कि हमारी संस्था का नाम जो है, हमारी फेलोशिप का नाम जो है, ये हमारी किताब पे यानी 1939 में जब भी पब्लिश हुई और उसका नाम जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस रखा गया तो उससे हम जाने लगे कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। लेकिन उसके पहले हमारे इस फेलोशिप का कोई नाम नहीं था। तो हमारा जब भी जिक्र होता था तो वो नेमलेस फेसलेस बंच ऑफ ड्रंक्स इस हिसाब से होता था, यानी जो अपना नाम नहीं बताते हैं और अपना चेहरा नहीं बताते हैं, ऐसे शराबियों का एक संगठन, इसी प्रकार से हमारे को व्यतीत किया जाता था, हमारे को व्यक्त किया जाता था। और एक्चुअली हम भी नहीं चाहते थे कि हम किसी के नजर में आए। शायद उसका मेन कारण ये था कि हमें भी अभी तक अपनी मद्य मुक्तता पे पूरा यकीन नहीं था और हमें इस बात का तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि समाज किस नजर से, किस निगाह से हमारी तरफ देखेगा। क्योंकि शराबी इस शब्द का जो एक कलंक जैसे लगता है किसी व्यक्ति को, तो इस कलंक से हम लोग डरते थे, क्योंकि ये कलंक लगेगा तो हमारा व्यवसाय, हमारी फैमिलीज, कोई भरोसा नहीं करेगा हमारे ऊपर और हमें चारित्र्यहीन गिना जाएगा। और ऐसी अवस्था में जो हमारा दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का जो प्रयास चल रहा है वो शायद आसान नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। ये हमारा शुरुआत के दिनों का डर था, क्योंकि सबसे पहले तो हम शराब से दूर रह पाएंगे कि नहीं इसके ऊपर हमारा यकीन नहीं था, या हमारे तत्वों के आधार पर बाकी लोग शराब से दीर्घ समय तक दूर रह पाते हैं, इसका भी हमारे पास अनुभूति नहीं था। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था अपने कार्यक्रम पे और अपने आप पे, वो बहुत ही कम था। और अगर हम फंस गए, अगर हम दोबारा पीने लग गए और हमने छाती ठोक कर सबको बताया कि नहीं अभी नहीं पीते हैं हम लोग, और लोगों की भी बंद करते हैं, और हम लोग अगर ऐसा बड़ी बड़ी बातें करने लगे और हम ही कल पी गए तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सभी विचारों को लेकर हमने सोचा था कि भाई हम अज्ञातवास में रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, किसी के नजर में नहीं आएंगे, अपना तो काम हो रहा है ना, हम तो शराब से दूर रह रहे ना, ये असंभव जो चीज है ये संभव हुई है ना हमारे बारे में, तो इसी को बचाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी, जैसे आप सभी जानते हो कि पहले तो जब 1937 के मार्च महीने में जब एक्रोन में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जब गिनती की तो लगभग 17 सदस्य बने हुए थे। उसमें से 6 सदस्य न्यूयॉर्क में थे और 11 सदस्य एक्रोन में थे। और ये 17 सदस्यों का जो रिकवरी था उसे ही देखकर हम, ये अद्भुत घटना को देखकर हम सभी अचंभित हुए थे और हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार 17 लोग जिन्होंने मर जाना चाहिए था ये बचे हुए, हमारे पास जरूर कुछ जबरदस्त साधन हमें प्राप्त हुआ है और हम इसके बारे में बात करना चाहते थे, जल्द से जल्द लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते थे। हमें लगा था कि ये अभी छुप के रहना नहीं, हमको बाहर आना जरूरी है। और जो समाज में जो हितचिंतक है इनके पास जाकर बड़े बड़े लोग हमारे ये जो हमें जादुई मंत्र मिला है, एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो दोनों शराब से दूर रहते, इस बात को दुनिया भर में फैलाना चाहिए। और लोगों के कानों तक जब ये बात पहुंचेगी तो बड़े बड़े फिलांथ्रोपिस्ट जो मतलब अच्छे कर्मों के लिए जो पैसा लगाते हैं, डोनेशन देते हैं, ये लोग हमारे को पैसा, बहुत मात्रा में पैसा आएगा, ये पैसे से हम लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये पैसे से हम लोग बहुत सारा अच्छा काम कर पाएंगे, ये सभी वो टाइम पे ख्याल हुआ करते थे। सो लगभग
1935 से 1937 तक इतना बदलाव आया था कि 2 साल की सोसाइटी में लोगों को अपने आप के ऊपर और अपने कार्यक्रम के ऊपर विश्वास बैठने लगा था। और ऐसे में जब 1938 में क्लीवलैंड समूह की शुरुआत हो गई और क्लैरेंस एस ने जो धमाका शुरू कर दिया, जब वहां की एक लोकल पत्रिका में उन्होंने अपना अनुभव छाप कर लाया और उसके जो संपादक थे, क्लीवलैंड प्लेन डीलर नाम का जो पत्रिका छपती थी, उसके संपादक इनके अच्छे मित्र थे। तो क्लैरेंस ने अपनी पहले हफ्ते में स्टोरी दी, क्योंकि शराबियों को ढूंढे कैसे, शराबियों तक पहुंचे कैसे। जैसे अभी लकी भाई ने पढ़ा कि शायद ही कोई हम तक पहुंच पाता था, तो हमारे पास में कार्यक्रम अच्छा है लेकिन लोगों तक पहुंचाने का कोई मार्ग हमारे पास नहीं था। तो ये लोगों तक पहुंचाने के हेतु क्लीवलैंड प्लेन डीलर में क्लैरेंस एस ने जब अपनी पहली दफा कहानी छपाई, तो उसके प्रतिसाद में कुछ लोगों का फोन आए, कुछ लोग मिलने आए और कुछ लोग पहला हफ्ता शराब से दूर रहे। और जब अगला शनिवार आया, जब ही दोबारा ये पत्रिका का वो एडिटर ने बोला, अभी किसका स्टोरी भेज रहे हो? तब तक कुछ सोचा भी नहीं था कि कुछ किसी का स्टोरी दे। तो ये जो रुके हुए थे, पिछले हफ्ते रुके हुए थे, उनमें से एक का कहानी, और फिर वहां से हर हफ्ते हर शनिवार को एक कहानी क्लीवलैंड प्लेन डीलर में छपने लगी। और 1938 और 39 के ये मिराक्युलस पीरियड में क्लीवलैंड में 30 ग्रुप या 35 ग्रुप और कुछ 300 लोगों की रिकवरी हो गई। अभी आप सोच सकते हैं कि 35 से लेके 37 तक बिल बॉब मेहनत कर करके न्यूयॉर्क में 6 सदस्य, वो भी डॉक्टरों की मदद से हॉस्पिटल से पकड़ के थोड़े बहुत रुके हुए थे। एकरॉन में 11 सदस्य रुके हुए थे। और ये सडनली क्लीवलैंड में 300 सदस्य जब रुक गए, तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ चुका था। सबको ऐसे लग रहा था कि हम डेफिनेटली कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। ये टाइम पे हमारी अनामिकता का जो तत्व है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। हाँ, हम छुप के रह रहे थे, लेकिन अनामिकता का कोई तत्व नहीं था हमारा। हमारी ट्रेडिशंस तो बहुत बाद में 46 में लिखी गई, 10 साल के बाद में लिखी गई। तो ये टाइम पे हमारा तत्व कुछ नहीं था। जो हम लोग अनामिक थे वो डर की वजह से अनामिक रहते थे। लेकिन जल्दी हमारे अनुभव ने हमें बताया, जैसे बड़ी मात्रा में लोग आने लगे, और पहले जब भी 10-12 ही रहते थे, तो हर एक जन एक दूसरे की स्टोरी जानता था, हर एक जन एक दूसरे को पहचानता था, क्योंकि मीटिंग्स होती थी वो घरों में ही होती थी। आज इसके घर में, उसके घर में, हमारी कहानी में लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में बताया जाता है कि शराबी लोग ऊपर हॉल में वगैरह बैठकर, एक रूम में बैठकर शेयरिंग करते रहते थे, और उनकी पत्नियां उनको कॉफी और उनको खाना, सैंडविचेस वगैरह ये देने में लगे रहते थे। और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये लोग साथ में रहा करते थे। ये इस प्रकार का था। तो कोई मीटिंग का 1.5 घंटे का समय या खराब एक दिन को मीटिंग, ऐसा नहीं था। रोजाना ही ये लोग मिलते थे और दिन भर साथ में रहते थे। धीरे धीरे ये बदलने लगा, और क्लीवलैंड ने कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हमारे को लाया। जैसे मीटिंग्स बढ़ने लगे, वैसे अनजान लोग आने लगे। पहले जो एक मेंबर को बड़ा जांच के अंदर लिया जाता था, अब ये जब ये वर्तमान पत्रों से आने लगे तो बड़ी मात्रा में सदस्य आने लगे, तो अनोखे लोग आने लगे। और सडनली अब मेरी कहानी दूसरे को पता चली, ये मुझे पसंद नहीं है, ये बात उभर कर आने लगी। तो ये अनोखे लोगों के सामने कोई मेरी कहानी कहे, या मैं कितनी बुरी तरह से मैं पिसा गया हूं,
ये मैं नहीं चाहता था कि लोगों के सामने आ जाए। और ये जो वैयक्तिक अनामिकता का जो 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 जरूरत है वो वहां से सामने आने लगा, क्योंकि अनजाने नए नए सदस्य हर हफ्ते आने लगे और वहां से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स अपने आप को हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मिली, वो क्लीवलैंड ग्रुप्स की तरफ से। उसमें से पहला था कि जो पहला अंतर समूह बना, इंटर ग्रुप, फर्स्ट इंटर ग्रुप, वो क्लीवलैंड में बना, क्योंकि हर हफ्ते जब भी ये क्लीवलैंड प्लेन डीलर में आर्टिकल छप के आता, हर हफ्ते में बड़ी बड़ी मात्रा में फोन कॉल आने लगे और वो लैंडलाइन फोन कॉल हुआ करता था। तो एक हेल्पलाइन बनाई गई और उस हेल्पलाइन को आंसर करने के लिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई और वो पहला ऐसा हमारा सर्विस सेंटर बना जहां से आने वाले लोगों से बातचीत करके उनको आज की मीटिंग कहाँ है, आज कहाँ हम लोग मिलने वाले, उसकी जानकारी दी जाने लगी। क्योंकि वहां पर रोजाना मीटिंग्स होने लगी, मीटिंग्स का समय कम होने लगा। ये पहले जो किसी के घर में मिलते थे 10-12 लोग, वो चेंज होने लगा और ग्रुप्स अलग अलग जगह पे मिलना, अलग अलग ग्रुप्स का मिलना। पहले सब लोग मिलके ही एक जगह मिलते थे, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की मीटिंग्स होती है, इस बात की शुरुआत हो गई। और स्पॉन्सरशिप, यानी ये हुआ यूं कि हर हफ्ते ये जो नए सदस्य जो आते थे, अभी अकेला क्लैरेंस कितने लोगों से बात करेगा और कितने लोगों को समझाएगा, स्टेप्स तो थी नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पहले हफ्ते में जो शराब से रुक गए, वो लोग जो दूसरे हफ्ते में आए उनको मार्गदर्शन करते थे, और जो दूसरे हफ्ते में सोबर हुए हैं वो तीसरे हफ्ते में आए उनको मार्गदर्शन करते थे। ऐसी उन्होंने एक चेन ऑफ स्पॉन्सरशिप बनाई। और जो पासिंग इट ऑन वाला जो संकल्पना है कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है तो मुझे दूसरे को दूर रहने में मदद करनी होगी, इसकी बड़ी मात्रा में प्रचिति जो है वो यहां से आई। तो स्पॉन्सरशिप और दूसरे को मदद करने से ही मैं अपनी शराब को रोके रख सकता हूं, ये संकल्पना जो है वो इन्हीं में से आई। और अनामिकता की जो जरूरत कि हर एक सदस्य की अपनी कहानी वो चाहे उतनी प्राइवेट रख सकता है, यानी मैं चाहूं तो सबके सामने बोलूं, या मैं चाहूं तो सिर्फ अपने मार्गदर्शक के साथ बात करूं। ये जो डिफरेंशिएशन है वो वहां से आ गया कि कुछ लोग थे जो हमारा जो समूह है वो समूह में बात करने के लिए चंद लोगों के सामने, 4 लोग 6 लोगों के सामने बात करने के लिए वो ठीक थे, लेकिन जब भी 100 लोग सामने हैं तो वो बात नहीं करते थे, या मेरी स्टोरी कोई मेरे पीठ पीछे दूसरे को बताए वो उनको पसंद नहीं था। वहां से पर्सनल एनोनिमिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमें वहां से मिलने लगा। और फिर ये सवाल आया कि कितना अनामिक रहना चाहिए। मैं हर व्यक्ति ने अपने आप को कितना अनामिक रखना है, ये उसका व्यक्तिगत चॉइस होना चाहिए। जैसे हमारे फाउंडर्स थे, बिल था, बॉब था, क्लैरेंस था, सब लोग इनको जानते थे कि इनकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये चेहरे हुआ करते थे। तो इनकी अनामिकता वो फेलोशिप में बिल्कुल नहीं रखे थे। लेकिन जो आने वाले नए नए सदस्य हैं उनमें से कुछ वकील थे, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, कुछ प्रतिष्ठित लोग थे समाज के, और वो नहीं चाहते थे कि अननोन लोगों के सामने उनके प्रोफेशन का, उनके घर का, उनके स्टोरी का जिक्र हो। तो वैयक्तिक तौर पर कितनी अनामिकता किसने रखनी है उसकी भी शुरुआत हमें वहीं से सुनने को मिलती है। तो चलो आगे सुनते हैं। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. With characteristic intemperance, however, some of our newcomers cared not at all for secrecy. They wanted to shout AA from the housetops.
and dead. Alcoholics barely dry rushed about bright-eyed, buttonhole anyone who would listen to their stories. Others hurried to place themselves before microphones and cameras. Sometimes they got distressingly drunk and let their groups down with a bet. They had changed from A members into A show-offs. This phenomena of contracts really set us thinking. Squarely before us was the question, how anonymous should an A member be? Our growth made it plain that we couldn't be a secret society, but it was equally plain that we couldn't be vaudeville circuit either. The charting of a safe path between these extremes took a long time. As a rule, the average newcomer wanted his family to know immediately what he was trying to do. He also wanted to tell others who tried to help him, his doctor, his minister, and close friends. As he gained confidence, he felt it right to explain his new way of life to his employer and business associates. When opportunities to be helpful came along, he found he could talk easily about A to almost anyone. These quiet disclosures helped him to lose his fear of alcoholic stigma and spread the news of AA's existence in his community. Many a new man and women came to AA because of such conversations. Though not in the strict letter of anonymity, such communications were well within its spirit. But it became apparent that the word of mouth method was too limited. Our works, as such, needed to be publicized. These AA groups would have to reach quickly as many despairing alcoholics as they could. Consequently, many groups began to hold meetings which were open to interested friends and the public, so that average citizen could see himself just what AA was all about. The response to these meetings was warmly sympathetic. Soon groups began to receive requests for AA speakers to appear before civic organizations, church groups, and medical societies. Provided anonymity was maintained on these platforms and reporters present were cautioned against the use of names or pictures, the result was fine. Then came our first few excursions into major publicity, which was breathtaking. Cleveland's Plain Dealer articles about us ran the town's membership from a few into hundreds overnight. The news stories of Mr. Rockefeller's dinner for Alcoholics Anonymous helped double our total membership in a year's time. Jack Alexander's famous Saturday Evening Post piece made a national institution. Such tributes as these brought opportunities for still more recognition. Other newspapers and magazines wanted AA stories. Film companies wanted a photograph with us, radio, and finally television. Beside us, the requests for appearances. What should we do? Over to you, Lucky ji. ओके, ज्यादा पढ़ लिया लगता है, बट एनीवेज हम शुरुआत करते हैं जहां से चंदू ने अभी पढ़ना शुरू किया। उसके पहले का वाक्य यही था कि यह स्पष्ट हो गया था कि हर सदस्य का नाम और उसकी कहानी भी पूरी तरह गोपनीय रहनी चाहिए यदि वह ऐसा चाहता है तो। अब अगला पैरा इसके बताता है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप अतिशयोक्त करते हुए हमारे कुछ नए सदस्यों को गोपनीयता की जरा भी परवाह नहीं थी, अनामिकता की जरा भी परवाह नहीं थी। वे चाहते थे कि ए को छतों से चिल्लाकर बताया जाए, मतलब छत पे चढ़ के चिल्ला के बताया जाए, और वे ऐसा ही करते थे। मुश्किल से सोबर हुए शराबी चमकती आंखों के साथ इधर उधर दौड़ते थे, किसी भी सुनने वाले को रोककर अपनी कहानी सुनाने लगते थे। कुछ लोग तो माइक्रोफोन और कैमरों के साथ सामने आने को उतावले रहते थे। कभी कभी वो बुरी तरह नशे में जा गिरते और पूरे समूह की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाते थे। वे ए सदस्य बदलकर ए के शो ऑफ बन गए थे।
यानी कि इसमें बिल अभी ये समझाना हमको बताना चाहता है कि शुरुआती के लोगों में जो डर था, उसके बाद में जो कुछ नए सदस्य आ गए अति उत्साही, और वो उनका सोचना ऐसा था कि छुप के करने वाली क्या बात है, ये तो दुनिया को बताना चाहिए हमने। इसमें बीच में एक खुल के बताना चाहिए हमने। तो और ऐसे खुल के बताने वाले सदस्य जब पब्लिक के सामने आते, तभी ये समझ लीजिएगा कि हमारी ट्रेडिशंस बनी नहीं थी, तभी की बातें हैं सारी। तो अगर जब वो पी लेते तो वापस धक्का लगता ग्रुप की प्रतिष्ठा को। इसके लिए बिल कहता कि वे एक ही सदस्य से बदलकर एक ही शो ऑफ बन गए थे, दिखावने वाले। अगले पैरा में लिखता है, इस विरोधाभासी परिस्थिति ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। यानी कि कुछ शुरुआत के लोग बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहते थे, अनाम रहना चाहते थे, गुप्त और गोपनीय रहना चाहते थे, और बाद में आए हुए नए लोग वो बताना चाहते थे कि भाई इसको तो अनाउंस करो, इसको तो, ये तो बहुत सक्सेसफुल है, जैसा है मैं करता हूं वो करता है। तब ये दो गुटों के बीच में विरोधाभासी परिस्थिति निर्माण हो गई। तो हमारे सामने सीधा प्रश्न था, एक ए का सदस्य कितना अनाम होना चाहिए, कितना अनामिक होना चाहिए। हमारी बढ़ती संख्या से ये स्पष्ट था कि हम कोई गुप्त समाज नहीं बन सकते या नहीं बने रह सकते। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट था कि हम कोई तमाशा या शो भी नहीं बन सकते थे। तो इधर बीच में एक वॉडेबल सर्किट का नाम बिल ने डाला है। वो उस वक्त वो वॉडेबल सर्किट यानी कि सर्कस के जैसा होता था, कि उसमें म्यूजिशियंस सब लोग होते थे और वो जाके शो करते थे, लोगों को खुश करते थे। तो बिल उसी का उदाहरण देके कहता है कि हम कोई तमाशा या शो भी नहीं बन सकते। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक सुरक्षित रास्ता तय करना लंबा समय ले गया। बिल अपनी कश्मकश बता रहा है, और उस कश्मकश में वो कहता है कि लंबा समय चला गया। सामान्यतः नया सदस्य चाहता था कि उसका परिवार तुरंत जान ले कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उन लोगों को भी बताना चाहता था जिन्होंने पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी, यानी कि उसका डॉक्टर, उसका पादरी, उसके करीबी मित्र। आत्मविश्वास बढ़ते ही उसे उचित लगता कि वह अपने नियोक्ता यानी कि अपने एम्प्लॉयर और व्यापारिक सहयोगियों को भी अपने नए जीवन मार्ग की जानकारी दे। जब मददगार होने के अवसर आते तो उसे लगभग किसी से भी एक के बारे में आसानी से बात करना संभव लगता था। ये शांत सरल खुलासे उसे शराबी होने के कलंक के डर से मुक्त करते और उसके समुदाय में एक के अस्तित्व की खबर फैलाते। ऐसी बातचीत के कारण कई नए पुरुष और महिलाएं ए तक पहुंचे थे। भले ही अनामिकता को कठोर नियमों में नहीं आता, पर यह उसकी भावना का बिल्कुल अनुरूप था। अब बिल हमें इस पैरा में ये बता रहा है कि हम कोई गुप्त समाज बने नहीं रह सकते थे क्योंकि हमारे नंबर्स बढ़ रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ हम कोई तमाशा या शो भी नहीं बनना चाहते थे कि जिसमें शराबियां अपनी कहानी बोलते हैं, बस जी बाद में कुछ नहीं होता, पी के गिर जाते हैं, लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जो नए सदस्य आने लगे, वो कहता कि वो चाहते थे कि उसका परिवार तुरंत जान ले। पुराने सभासद अपने परिवार को भी नहीं बताते थे, सीक्रेट सोसाइटी थी ना हमारे, एकदम गुप्त। तो ऐसे में एक बात तो तय हो गई कि ऐसे लोग जब भी अपने परिवार के साथ, अपने डॉक्टर या पादरी के साथ बात करते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और अपने नए जीवन मार्ग की जानकारी देते थे, तो उससे नए पुरुष और महिलाएं ए तक पहुंचने लगे। इसके आगे ये है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ मुंह जबानी तरीका पर्याप्त नहीं था। यानी कि ए का मैसेज एक रिकवरिंग अल्कोहलिक अपने परिवार को देता है या किसी और को देता है, इतने से ही काम नहीं चलना था। हमारे काम को एक आंदोलन के रूप में प्रचारित होने की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे हम बिल का वो जोश देख सकते हैं। ए समूह को जितने अधिक निराश शराबियों तक जितनी जल्दी संभव हो सके पहुंचाना था। इसलिए कई समूहों ने ऐसी बैठकें आयोजित करनी शुरू की
जो इच्छुक मित्रों और आम जनता के लिए खुली हों, यानी कि जैसे अपनी ओपन मीटिंग्स हो गई या पब्लिक इंफॉर्मेशन की मीटिंग्स हो गई, उस तरह की, ताकि सामान्य नागरिक स्वयं देख सके कि एए वास्तव में क्या है। इन बैठकों पर प्रतिक्रिया अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण थी, यानी कि उनको सहानुभूति मिलने लगी समाज से। शीघ्र ही समूहों को अनुरोध मिलने लगे कि ए के वक्ता नागरिक संगठनों, चर्च समूहों और चिकित्सा स्थानों के सामने आकर बोले। यानी कि जो भी अपने मित्र ऐसी मीटिंग्स में आते थे और जब हमारी कहानी और हमारे 12 कदमों के बारे में और उस पे हुए परिवर्तन के बारे में सुनते थे, तो वो भी बहुत आकर्षित होते थे और हमें सपोर्ट करने के लिए वो अपने चर्च में, अपनी इंडस्ट्री में या अपने हॉस्पिटल में ए के सदस्यों को बुलाने लगे थे। तो मुद्दा यह है कि यदि इन मंचों पर अनामिकता बनाए रखी जाती और उपस्थित रिपोर्टरों को नाम या तस्वीरें न छापने की चेतावनी दी जाती, तो परिणाम बहुत अच्छा होता था, बिल कहता है। यानी कि जब हम ऐसे बाहर की सभा में जाते थे और अपनी अनामिकता बनाए रखने की उपस्थित रिपोर्टरों को यह कहते कि वे हमारे नाम और तस्वीरें न छापें, हम अनामिक है, हमारी अनामिकता बरकरार रखें, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा आता था। उसका कारण है कि आप जैसे जानते हैं कि सारी दुनिया में अगर कोई काम करता है तो उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है, लेकिन उसके विरोधाभास में एक ऐसी संगठना से लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे तत्वों को छापो, हमारा नाम या हमारी फोटो मत छापो। फिर हमारी पहली कुछ बड़ी प्रचार यात्राएं शुरू हुई जो एकदम सांस रोक देने वाली थी। क्लीवलैंड की प्लेन डीलर अखबार में हमारे बारे में छपे लेखों ने उस शहर की सदस्यता को कुछ लोगों से एक ही रात में सैकड़ों तक पहुंचा दिया। मिस्टर रॉकफेलर द्वारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए आयोजित डिनर की समाचार रिपोर्टों ने एक ही वर्ष में हमारी कुल सदस्यता को लगभग दुगना कर दिया। जैक अलेक्जेंडर का मशहूर सैटरडे इवनिंग पोस्ट लेख को एक राष्ट्रीय संस्था बना गया। ऐसे सम्मानजनक उल्लेखों ने और अधिक पहचान पाने के अवसर पैदा किए। अन्य अखबारों और पत्रिकाओं ने एक ही कहानियां मांगी। फिल्म कंपनियां हमें फिल्माना चाहती थी। रेडियो और अंततः टेलीविजन हमसे उपस्थिति के लिए अनुरोध करते हुए हम पर दबाव डालने लगे। अब सवाल यह था हमें क्या करना चाहिए। मैं यहीं पे रुकता हूं, पूषण की आखिरी पैरा पूरा करूं। आगे अभी तक इसमें चंदू ने पढ़ा नहीं है, हाँ ओके ठीक है, डन। लेकिन मेरे हिसाब से आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि जो पॉइंट्स है इसके आगे वो सब मर्जिंग वाले पॉइंट्स है। मर्जिंग वाले पॉइंट्स है। तो जब ये सब लोगों के अनुरोध आने लगे और समूह के संचालकों पर जोर पड़ने लगा, तो बिल कहता है हमें क्या करना चाहिए था। इन अनुभवों ने हमें सिखाया कि अनामिकता यानी कि वास्तव में कार्यरत विनम्रता है, यानी कि ह्यूमिलिटी इन एक्शन। यह एक सर्वव्यापी आध्यात्मिक गुण है जो आज हर जगह जीवन का मूल स्वर है। अनामिकता की भावना से प्रेरित होकर हम सदस्यों के रूप में व्यक्तिगत पहचान पाने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को छोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वह साथी शराबी के साथ हो या आम जनता के सामने। जब हम इन अत्यंत मानवीय महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखते हैं तो हमें लगता है कि हम में से प्रत्येक एक सुरक्षात्मक कवच की बुनाई में भाग लेता है, आवरण की बुनाई में भाग लेता है, जो हमारी पूरी सोसाइटी को ढकता है और जिसके भीतर यानी कि अनामिकता के कवच के भीतर हम एकता में बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। हम निश्चिंत है कि अनामिकता द्वारा व्यक्त की गई विनम्रता अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सबसे बड़ी सुरक्षा है। ओवर टू यू कुशल। Chandu, you would like to finish reading the English version? Yes.
Yes, Bhushan. As this tide offering top public approval swept in, we realized that it could do us incalculable good or great harm. Everything would depend upon how it was channeled. We simply couldn't afford to take the chance of letting self-appointed members present themselves as messiahs representing AA before the whole public. The promoter instinct in us might be our undoing. If even one publicly got drunk or was lured into using A's name for his own purposes, the damage might be irreparable. At this altitude, press, radio, films, and televisions, anonymity, 100% anonymity was the only possible answer. Here, principles would have to come before personalities without exception. These experiences taught us that anonymity is the real humility at work. It is an all-pervading spiritual quality which today keynotes AA's life everywhere. Moved by the spirit of anonymity, we try to give up our natural desires for personal distinctions as AA members, both among fellow alcoholics and before the general public. As we lay aside these very human aspirations, we believe that each of us take part in the weaving of a protective mantle which covers our whole society and under which we may grow and work in unity. We are sure that humility expressed by anonymity is the greatest safeguard that Alcoholics Anonymous can ever have. Thank you. तो दोस्तों, बिल डब्ल्यू बड़ी खूबसूरती के साथ में ये जो जर्नी है कि मेरा शराबीपन एक दबा हुआ सीक्रेट, मेरे दिलो दिमाग में दबा हुआ सीक्रेट, मेरे फैमिली ने दबाया हुआ सीक्रेट, पूरे दुनिया से छुप कर पीने वाला मैं, जैसे मेरी शराब रुक जाती है, फिर भी मेरे मन से वो शराबी, ये शब्द का जो कलंक है, वो कलंक से हम लोग कैसे डरते थे और धीरे 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 कैसे हमारी प्रगति हो गई कि वो कलंक से निकलकर हम लोग कैसे बड़े फक्र के साथ हमारे शराबीपन के बारे में बात करना शुरू किए। वो जर्नी वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि जब भी हमारी शराब रुक गई और जैसे हमारी शराब रुक गई और जैसे हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी शराब अभी रुकी हुई रह सकती है, तो सबसे पहले हमने विश्वास में लिया अपने फैमिली को। फिर धीरे धीरे और थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो हमारा जो प्रीस्ट है या हमारा जो डॉक्टर है, फिर हमारा जहां मैं काम धंधा करता हूं, नौकरी करता हूं, वहां मेरा बॉस है, मेरे सहचरी है, ऐसे धीरे 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 मेरे मद्य मुक्तता के बारे में बोलने की मुझे हिम्मत बढ़ते जाती है। और जब भी ये हर जगह से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मेरी तारीफ होती है, मेरा अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसी तरीके से लगे रहो। और फिर मैं जब भी बाकी नए सदस्यों को मदद करने लगता हूं और उनकी भी शराब जब भी बंद होने लगती है और जैसे इस क्रम पे, इस कार्यक्रम पे मेरा विश्वास बढ़ने लगता है, फिर मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। फिर मैं अनजान लोगों को भी समूह में बुलाने के लिए तैयार हो जाता हूं, उनके सामने शेयरिंग करने के लिए तैयार हो जाता हूं। और वहां से आगे धीरे धीरे जब भी डॉक्टर या प्रीस्ट या कोई भी ऐसी जन जागृति की सभा में मुझे बुलाते हैं कि भाई यहाँ पर आके आपके विषय में बात करो, तो मुझे इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं अब जाके मेरे कम्युनिटी में भी जो मेरे साथ हुआ है वो खुलकर बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के साथ में बात कर सकता हूं। तो यहां तक जो है बिल कहता है कि यहां तक जो मेरे अगल बगल के लोग, मेरे समाज, ये सबको मालूम होना, यहां तक का जो जानकारी है ये होना जरूरी है। और ये
हर मेंबर के जीवन में होता ही है। लेकिन इसके आगे की जो प्रगति अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हुई वो बड़ी तेजी से हुई। यहां तक जो था, यानी जो पहले 10-15 साल का जो पीरियड था, ये धीरे धीरे चल रहा था, तो ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन सब लोग अनुभव कर रहे थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टप्पे जैसे वर्तमान पत्रों ने, मैगजीन्स ने, रेडियो ने, टेलीविजन ने हमारे को सडनली नेशनल लेवल की पब्लिसिटी दे दी। वो टाइम पे हम में से कुछ सदस्य जो है, जो आगे धीरे धीरे इस प्रक्रिया में जो लोगों के सामने बात करने लगे थे, अब वो रेडियो के सामने बात करने लगे, अभी वो टीवी के सामने बात करने लगे, अभी लाखों लोगों के सामने बात करने लगे। और फिर जो भी लार्ज स्केल में पब्लिक का जो ये ओपिनियन आने लगा, पब्लिक का जो लाइकिंग और पॉपुलैरिटी जब भी होने लगी, तो उसके साथ में कुछ धोखे भी होने लगे। हम में से कुछ ऐसे जो प्रवक्ता थे, जो बड़ी बड़ी लोगों के सामने, भीड़ के सामने बोलने वाले थे, इनमें से किसी का रिलैप्स हो गया, कोई शराब पी गया, और फिर पब्लिक के सामने हमारी बदनामी हुई, हमारे समूहों की बदनामी हुई, हमारे फेलोशिप की बदनामी हुई, और फिर ये बड़ा गहन समस्या निर्माण हो गया कि भाई किस हद तक हमने अनामिकता रखनी चाहिए, किस हद तक हमने बात करनी चाहिए, और किसके आगे हमने अनामिकता रखनी चाहिए। तो यहां पर वो जो डिवाइड है, वो जो डिवीजन है, वो क्रिएट हो गई कि जहां तक वैयक्तिक स्तर पर मैं जाकर जो भी मेरे समाज में बात करता हूं वहां तक ठीक है, लेकिन जहां मास मीडिया है, जहां वर्तमान पत्र असंख्य लोग, जहां रेडियो जो भी अनगिनत लोग, टीवी अनगिनत लोग, ऐसे लोगों के सामने जब भी चेहरा बनने का सवाल आएगा, तो वहां पर यह बेहतर है कि व्यक्तिगत रूप से हम अनामिक ही बने रहे। क्योंकि वहां पर जब तक मेरा नाम खराब होने का सवाल है, ठीक है, जब तक मेरे काम का नाम खराब होने का ठीक है, लेकिन जब पूरे नेशनल लेवल पे जब भी बदनामी होने की संभावना है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। और फिर उसमें से जन्म हुआ इस सुंदर संकल्पना का कि व्यक्ति गलती कर सकता है, व्यक्ति फेल हो सकता है, लेकिन तत्व गलत नहीं होते। क्योंकि इस दौर तक यह पूरा यकीन हो गया था सबको कि हजारों की तादाद में रिकवरी हो रही है, कुछ चंद लोग फेल हो भी रहे हैं, कुछ 100-50 लोग फेल हो भी रहे हैं, लेकिन 10-10 हजार लोग शराब से दूर हो रहे। तो लोगों को, सभी को दिखाई दे रही थी कि तत्वों का जो पालन करेगा वो बच जाएगा, और जब तक तत्वों का पालन हो रहा है तब तक तुम बचे रहोगे। तो जहां तक सिर्फ जन जागृति करने का सवाल है, लोगों के सामने खुलकर बिना डरे बात करने का सवाल है, वहां तक सब ठीक है, क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति का चिन्ह है। लेकिन जहां आध्यात्मिक प्रगति रुककर ईगो का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, यानी मैं यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरा चेहरा यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चेहरा, मैं बोलूंगा वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज, ये अगर होने लगेगा तो वो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगा, और वहां से ईगो, अपना जो अहम है, वो अहम दोबारा काम करने लगेगा। और यहां पर BLW को एक बड़ा खूबसूरत ये दिखाई दिया कि मेरे अंदर के डरों में से बाहर निकलकर खुलकर अपने आप की शराबियत को मान्य करना और उसके बारे में खुलेआम बात कर सकना, ये एक दिव्य दृष्टि का अनुभव है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि को अगर मैं जाके पब्लिक के सामने अगर लेकर जाऊं, तो ये दिव्य दृष्टि खत्म होकर वहां से अहंकार की शुरुआत होती है। तो जहां पर अहम भाव निर्माण होगा, जहां पर पर्सनल डिस्टिंक्शन का बात करते हैं, यानी किसी खास व्यक्ति के प्रमोशन का, या खास व्यक्ति को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज का, या खास व्यक्ति को ही बुलाया जाए इसका चेहरा बनकर, ऐसा जब ये सवाल आता है, तो यहां पर वो आध्यात्मिकता नहीं बल्कि अहम भाव को ये है। तो वो जो फाइन लाइन है, वो मास मीडिया की उन्होंने डिफाइन की कि जब तक मैं खुलकर अपने समाज में तक बात कर रहा हूं वहां तक ठीक है,
लेकिन जहां पर पब्लिकली मुझे किसी मीडिया के सामने आना है तो वो ठीक नहीं है। तो ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि विथ सेल्फ रियलाइजेशन, जब मैं अपने आप को, खुद को पूरी तरह से जान जाता हूं, तो मुझे अंदर ही अंदर समझ में आना चाहिए कि कहां मेरी मैसेज देने की इच्छा से मेरा बड़प्पन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ह्यूमिलिटी ये मेरा सेफगार्ड है। तो अहम भाव से बचने के लिए मुझे नम्रता रखनी पड़ेगी, और मेरी नम्रता सबसे बेहतर है कि मैं बोल सकता हूं, मैं चेहरा बन सकता हूं, फिर भी मैं चूज करता हूं कि मेरा चेहरा ना बने। मैं आसानी से अपना इंप्रेशन जमा सकता हूं, लेकिन मैं चूज करता हूं कि इंप्रेशन मेरा नहीं बल्कि मेरे कार्यक्रम का बने, मेरे फेलोशिप का बने। तो पर्सनल डिजायर जो है कि मेरा नाम बने, क्योंकि हम सभी भूखे हैं रिकॉग्निशन के, तारीफ के, सभी भूखे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बद्दुआएं, बहुत सारा अपमान सहा हुआ है, और आज भी हमारी तारीफ हो रही है तो हमारे को वो बहुत चाहिए, हमको चाहिए जैसा लगता है। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां हमने जानना चाहिए कि भाई संदेश वहन करना और पर्सनल प्रमोशन करना, इसमें जो अंतर है वो अनामिकता डिफाइन करती है। तो सही मायने में अगर मैं अंदर से जागरूक हो चुका हूं तो मेरे तत्वों का प्रसार होना चाहिए, मेरा प्रसार नहीं। ये उसका महत्व मैं जान सकना चाहिए। और इसीलिए अगला जो टप्पा आता है कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। तो एक कार्यक्रम, एक हमारे जैसा एक फेलोशिप जहां लोगों का ही बना हुआ है, और जो भी मदद मिलती है वो लोगों से ही मिलती है। मुझे संदेश देने के लिए आया था वो कोई आदमी ही था, मेरे लिए अनगिनत घंटे किसी ने बिगाड़े, वो भी कोई आदमी ही था। इन लोगों को मैं कैसे महत्व नहीं दूं? तो इनका महत्व मेरे जिंदगी में से कभी कम नहीं हो सकता। अगर हम बिलडब्ल्यू का ही देखें तो एबीटी ने उनको संदेश दिया था, लेकिन जब भी एबीटी गुजर गए, वो टाइम पे वो सिर्फ 6 साल सोबर थे। इसका मतलब एबीटी की सोबराइटी ज्यादा नहीं थी, इसके बावजूद बिलडब्ल्यू ने अपना स्पॉन्सर एबीटी को ही माना। यानी जिस व्यक्ति की वजह से मुझे संदेश मिला वो मेरे लिए तो किसी संत महात्मा से कम नहीं है, तो उसका महत्व मेरे जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकता। या जो व्यक्ति ने मेरे साथ में स्टेप वर्क किया, मेरे साथ में घंटे बिताए, मुझे कार्यक्रम समझा, मुझे एक रीति रिवाज समझाए, एक मेंबरों के साथ पहचान कर रखे दी, इस व्यक्ति के एहसानों तले मैं हमेशा जिंदगी भर दबा हुआ रहूंगा, और इनका महत्व मेरे जिंदगी में कभी भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक व्यक्ति और तत्व एक साथ है तब तक दोनों मेरे लिए आदर्श है। लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो व्यक्ति तत्व के खिलाफ हो गया, यानी अगर वो व्यक्ति तत्व से अलग हो गया तो फिर वो व्यक्ति को मैं नहीं, व्यक्ति पूजा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तत्व के सहारे चलूंगा। क्योंकि हमारे बीमारी का स्वरूप ही ये है कि कितने भी साल की सोबराइटी के बाद में मेरे पैर तो मिट्टी के हैं, मैं कभी भी फिसल सकता हूं। मेरे जीवन में कुछ ऐसे प्रकार हुए जिसके वजह से मुझे दोबारा शराब के पास जाना पड़ा। तो जो लोगों को सबको मैंने सोबर होने में मदद की, वो सब लोगों ने शराब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं गलत गया हूं तो मैं दोबारा अगर तत्वों का पालन करूंगा तो मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगा। अगर मेरा व्यक्तिगत मेरे लीडरशिप बन जाएगी तो मैं पीऊंगा तो मेरे साथ में मैंने जिनके साथ काम किया वो सबको पीना पड़ेगा। क्योंकि वो व्यक्ति पूजा में जो व्यक्ति पूजा करेंगे तो उनको वो सबको वो गलत नहीं लगेगा। इसीलिए एक हमारे साथ में तत्व दिया है कि भाई हम व्यक्तियों का महत्व कम नहीं बोल रहे, और जब तक व्यक्ति और तत्व साथ चल रहे हैं तो दोनों का महत्व बराबरी से है। लेकिन हमने हमेशा तत्वों को व्यक्तियों से पहले रखना चाहिए। व्यक्तियों का महत्व कम नहीं होता, लेकिन तत्वों का महत्व है ये उससे ज्यादा होता है।
तो ये जो है ये बड़ा खूबसूरत आध्यात्मिक तत्व हमारे सामने दिया हुआ है कि जब भी मेरी ग्रोथ हो रही है तो कई बार जिंदगी ऐसे मेरे सामने अनुभव लेके आएंगी कि शायद जिसने मुझे संदेशा दिया उससे भी आगे मैं आध्यात्मिकता से मैं जा सकता हूं, मैं सेवा में जा सकता हूं, मैं नॉलेज में जा सकता हूं, मैं अनुभवों में जा सकता हूं। लेकिन जो तत्व है कि पास इट ऑन, एक सदस्य दूसरे को मदद करता है, एक सदस्य दूसरे को जो भी संदेश वहन करता है, उसी से ये जो तत्व जो है ये तत्व ये हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, ये चिरंतन रहेंगे, ये सनातन रहेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल अब बिफोर पर्सनैलिटीज का जो ये है वो उसमें दिया है। और अंतिम एक मुद्दे के बारे में एक पैम्पलेट है हमारा अनामिकता के बारे में। आप देखते हो कि हर एक एए के समूह में आपको बिल और बॉब का फोटो दिखता है, लेकिन वो ग्रुप जिसने स्थापन किया उसका फोटो नहीं दिखता कभी आपको। कभी आपने देखा है कि रिवाइवर ग्रुप किसने बनाया, उसका फोटो आपको नहीं दिखेगा वहां पर, लेकिन बिल और बॉब का फोटो दिखता है। या जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र होता है तो बिल और बॉब के जो फोटो जो है वो इस्तेमाल होते हुए हमको दिखते हैं, पब्लिश होते हुए दिखते हैं। वो भी मास मीडिया में नहीं होते, यानी 10 जून को जो आर्टिकल छप के आएगा वहां पर न्यूज़पेपर में आपको बिल और बॉब के फोटो नहीं दिखेंगे। तो एनोनिमिटी ऑफ को फाउंडर्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत पैम्पलेट है। ये पैम्पलेट बताता है कि ये जो लोग थे ये हमारा अनामिकता का तत्व बनने के पहले से थे और उनका चेहरा देखकर लोगों ने इस कार्यक्रम को जाना हुआ है। तो जब भी एए मेंबर्स, उनको हमारे लिए उनका जो महत्व है वो विशेष महत्व है, हमारे लिए वो किसी संतों के से कम नहीं है। तो एए के समूहों में हम लोग बिल के, बॉब के या इस प्रकार से जो फोटो जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या एए के साहित्य में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका हम लोग अभी भी उपयोग वर्तमान पत्रों में, टीवी नहीं करते हैं, लेकिन इनके जीवन के ऊपर फिल्म्स बनी हुई है, आपने देखा हुआ है। माय नेम इज बिल डब्ल्यू करके फिल्म बनी हुई है, या इसी प्रकार के और वीडियोस बने हुए, बिल स्टोरी का एक वीडियो बना हुआ है। तो ये जो को फाउंडर्स है उनकी वो अनामिकता को विद इन द फेलोशिप के लिए और सर्कुलेशन के लिए ये अपवाद करके कॉन्फ्रेंस ने मान्यता दी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जब इनको पर्सनली सम्मानित किया गया था, जब ये बिल जिंदा थे और टाइम मैगजीन ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर, उनके जिंदगी के ऊपर एक स्टोरी बनाई थी, तो उनका जो चेहरा है उन्होंने दिखाया नहीं है। वो अकेला टाइम मैगजीन का ऐसा इशू है जहां पर बिल डब्ल्यू ऐसे पीट करके बैठे हुए हैं और ऐसा उनका साइड बैक प्रोफाइल का फोटो दिया हुआ है। या डॉक्टर बॉब, अगर आप एक्रोन में उनका जो टोमस्टोन जो बोलते हैं जहां पर उनका दफन किया गया है, वहां पर जो उनका जो पत्थर है वहां पर कोई उनका ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के को फाउंडर थे वगैरह वगैरह कोई भव्य दिव्यता नहीं है। एक आम आदमी के जैसे उनका नाम और बड़ी सादगी के साथ में उन्होंने लिखा। उनका कहना था टू कीप इट सिंपल, कि हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, कोई बड़ा दिव्य काम नहीं किया है, और हम बड़ी सादगी के साथ में ही हमें पहचाना जाना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी जो है, अनामिकता है, कि हमारा जो काम है ये ईश्वर का काम है,
और वो ईश्वर का काम करके ही जाना जाना चाहिए। व्यक्ति ये सिर्फ साधन है, व्यक्तियों के जरिए ये कार्यक्रम व्यक्त जरूर हुआ है, लेकिन ये काम है ये ईश्वर का है, और अगर उसकी कृपा होगी, उसकी कृपा बनी रहेगी, तो ही ये कार्य चलते रहेगा। ये सभी तत्व जो है ये सभी हमने यहां वहां से उठाए हुए हैं और हमारे काम आए हुए हैं, और ये दुनिया से ही लिए हुए हैं और दुनिया के लिए ही है। हमने कुछ खास इसमें नहीं किया है। ये भाव इसके पीछे का है दोस्तों। बड़ा ही खूबसूरत तत्व के साथ में ये ट्रेडिशन यहां पर पूरी होती है। सो स्क्रीन शेयर मैं यहां पर रोक देता हूं, और कितना समय बचा है अभी? समय हो चुका है क्या? 25 मिनट 20-25 मिनट बचे हुए। तो या तो मैं यहाँ पर जो ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवाल है वो ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवाल ले सकता हूँ, या अगर कोई शेयरिंग करना चाहे तो शेयरिंग हम लोग ले सकते हैं। लेकिन पहले मैं सोचता हूँ मैं क्विकली ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवाल ले लेता हूँ, ताकि हम लोग को पता चले कि ये ट्रेडिशन में क्या क्या भाव जो आगे जो हमने सोचे हुए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं इसमें। तो उसका सबसे पहला सवाल है, why is it a good idea for me to place the common welfare of all A members before individual welfare? What would happen to AA if AA as a whole disappeared? तो पहला सवाल यह है कि सभी सदस्यों का वेलफेयर ये इंडिविजुअल वेलफेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? यानी मैं मेरी ही हाँकने लगूंगा तो हर एक मेंबर जो है वो वैसे ही ईगो सेंट्रिक है, ईगो से भरा हुआ है, तो मेरा रख के नहीं, बाकी समूह जो है मेरा समूह टिकेगा तो मैं टिकूंगा। और मेरे जैसे शराबी का अगर एक कल नहीं रहेगी तो मेरे जैसे शराबी का क्या होगा? ये एक विचार करने के लिए, एक मेडिटेशन के लिए पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन आई डू नॉट ट्रस्ट और एग्री विथ एएस करंट सर्वेंट्स, हु डू आई विश हैड द अथॉरिटी टू स्ट्रेटन देम आउट? तो हमारे ए में किसी को ऐसे अधिकार, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, या कोई ऐसा अधिकार पद नहीं है, और जब भी हमारे चुने हुए कुछ हमारा आईजीआर है, या हमारे इंटरग्रुप के पदाधिकारी है, या हमारा डेलीगेट है, या हमारे ट्रस्टीज है, अगर वो जो काम कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है, तो मैं किसके हाथ में ये अधिकार होना चाहिए ऐसा समझता हूं कि इनको ठीक कर सके। तो आगे इसके बारे में जो जानकारी है वो सर्विस मैनुअल में और हमारे कॉन्सेप्ट्स में इसके प्रति काफी जानकारी दी गई है। तीसरा सवाल है, इन माय ओपिनियन ऑफ एंड रिमार्क्स अबाउट अदर एज, do I imply that membership requirements go beyond the desire to stay sober? तो मेरे समूह में किस टाइप के सदस्य होने चाहिए या किसको अलाउ करना चाहिए, ऐसे बारे में मेरे कोई खास ओपिनियंस है क्या? कि सिर्फ शराब से दूर होना इतना ही एए सदस्यता के लिए पूरा है, या इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, कुछ और कंडीशंस होनी चाहिए कि उसके बगैर हम लोग ने ऐसे ही किसी को भी ले लेते हैं और फिर वो लोग वो हमारा कार्यक्रम डाइल्यूट हो जाता है? तो मेरा क्या मत है, ये क्या मैं ये मानता हूं कि सिर्फ शराब से दूर होने की इच्छा ये सदस्यता के लिए काफी है, या इससे भी और कुछ होना चाहिए, ऐसे मेरे मानना है। चौथा पॉइंट है, हैव आई अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एन एए ग्रुप फुलफिल इट्स प्राइमरी पर्पस? तो एए के समूह का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि मैंने शराब से दूर रहना चाहिए, सदस्यों से दूर रहना चाहिए,
और दूसरे सदस्य को शराब से दूर होने में मदद करनी चाहिए। तो ये प्राइमरी पर्पस पूरा करने में मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूं। तो क्या मैं ग्रुप के किसी कार्यभाग में हाथ ले रहा हूं, मैं कुछ सेवा दे रहा हूं, कि मैं खाली अपनी अपनी मीटिंग करके घर जा रहा हूं? क्या मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं? क्या मैं नए सदस्यों के साथ में काम करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हूं? क्या मैंने खुद स्पॉन्सर लिया हुआ है? तो एक अच्छा समूह अच्छे ढंग से संदेश वहन कर सके, इसके लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है और वो मेरा क्या रोल है। 5, डू आई डू ऑल आई कैन टू डू सपोर्ट AA फाइनेंशियली। तो AA बाहर से पैसा ले नहीं सकता, लेता नहीं है। तो AA का जो भी कार्य है वो उसके सदस्यों ने दिए हुए कंट्रीब्यूशन पे ही चलता है। तो क्या मैं ये सोचता हूं कि अरे है ना, हमारे समूह में पैसे वाले मेंबर है, वो दे देंगे, हो जाएगा, मैं 10 रुपया डाल दूंगा तो काफी है, मेरा ये विचार होता है? या मेरी तरफ से मेरी क्षमता और मेरी इच्छा से जितना मेरे से हो सके उतना मैं आर्थिक योगदान देने के लिए तैयार रहता हूं। 6, शुड आई कीप माई AA मेंबरशिप अ सीक्रेट or reveal it in private conversation when that may help another alcoholic and therefore me? तो मेरी AA की सदस्यता मैंने सीक्रेट रखनी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए, या जब भी किसी व्यक्ति को उसका लाभ होने जैसा है वहां पर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी AA सदस्यता के बारे में बात कर सकता हूं? Is my brand of AA attractive so that other drunks might want it? तो अगर मेरी सोब्राइटी है या जिस प्रकार से मेरी AA सदस्यता को मैं निभाता हूं, क्या ये दूसरे के लिए एक आकर्षण बन सकता है? मेरी तरफ देख के क्या लोगों को लगेगा कि मैंने भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ज्वाइन करनी चाहिए? तो ये एक तत्व है। 7, व्हाट डज एनोनिमिटी मीन टू मी? यानी मैं अपनी अनामिकता किस हद तक रखता हूं, अनामिकता की समझ क्या मुझे पूरी है? क्या अनामिकता के विषय में जो भी लिटरेचर है वो मैंने पढ़ा हुआ है, उसका पूरा अंदाजा मुझे है? कि मैं ब्लाइंडली जाके यहाँ वहां फोटोज लेते रहता हूँ, लोगों की रिकॉर्डिंग शेयर करते रहता हूँ, वीडियो शेयर करते रहता हूँ? तो क्या मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर इसकी क्या जिम्मेदारी है? 8, in light of increased awareness of alcoholism and AA's program of recovery among the general public, why is the principle of anonymity still important? तो अभी तो दुनिया में AA के प्रति काफी अच्छी जानकारी हुई है, AA के कार्यक्रम के बारे में जानकारी हुई है, अभी कोई कलंक रहा नहीं अल्कोहलिक बोलने में, तो फिर भी मुझे अनामिक रहने की जरूरत है क्या? कि अभी मैं खुलेआम लोगों को बोल सकता हूं, मैं इतना, वो पुराने जमाने में था तभी ठीक था, लेकिन अभी जमाना बदल चुका है। अभी अगर मैं पॉडकास्ट करता हूं या मैं अपनी अनामिकता मेरे अपने फेसबुक पेज पे ब्रेक करता हूं तो इट इज ओके। Am I mindful to respect the anonymity of other AA members who may work in my place of employment or my industry? तो अगर मेरे कंपनी में कोई काम करने वाला दूसरा कोई सदस्य अगर ए मेंबर है तो मेरे काम की जगह में उसकी एक ही सदस्यता के बारे में मैं बात नहीं करता हूं, इसके लिए प्रति मैं जागरूक हूं क्या? हाउ अबाउट ए मेंबर्स हु लिव इन माय एरिया और नेबरहुड? अगर मेरे अगल बगल में कोई ए मेंबर्स रहते हैं तो उनकी अनामिकता के बारे में मैं दक्षता रखता हूं? या कोई मेरा बाजू वाला मिल गया, भले मैंने अपनी अनामिकता नहीं रखी होगी और मेरा नेबर बोला अरे तू इसको कैसे, अरे वो बेवड़ा है, वो हमारा मेंबर है, ऐसी बातें मैं करता हूं? या मैं जागरूक रहता हूं कि मैं लोगों की, दूसरों की अनामिकता जो है वो पूरी तरह से मैं रखता हूं क्या?
What does the principle before personalities mean to me? तो अभी हमने बड़े डिटेल में इसका विश्लेषण किया। इसके बावजूद मेरी समझ क्या है कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज, ये तत्व को मैं अपने अनुभव से कैसे समझता हूं। तो ये कुछ सवाल रहे हैं दोस्तों अनामिकता के ऊपर। और एक अंतिम ग्रेपवाइन में से एक जो पीस है वो मैं यहां पर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इन इट्स मूड ऑफ humble anonymity, tradition 12 plainly enough comprehends the preceding 11. तो नम्रता और अनामिकता के इस भाव में 12वां जो ये हमारा ट्रेडिशन है वो बड़ी सिंपल तरीके से पिछले 11 जो ट्रेडिशंस है उनको समझने में हमें मदद करता है। The 12 points of tradition are little else than a specific application of the spirit of the 12 steps of recovery to our group life and to our relations with society in general. तो ये जो 12 ट्रेडिशन है हमारी, ये जैसे 12 कदम अपने है, 12 स्टेप्स हमारे वैयक्तिक रिकवरी के लिए है, वैसे ये जो 12 ट्रेडिशन है ये हमारे सामूहिक जीवन के लिए है। द रिकवरी स्टेप्स वुड मेक ईच इंडिविजुअल ए होल एंड वन विद गॉड। जो हमारी 12 स्टेप्स है ये हमें कंप्लीट करती है एज एन इंडिविजुअल और भगवान के करीब लाते हैं। एंड द 12 पॉइंट्स ऑफ ट्रेडिशन वुड मेक अस वन विद ईच अदर एंड होल विद द वर्ल्ड अबाउट अस। और ये जो 12 ट्रेडिशंस है ये हमें एक दूसरे के साथ यानी यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये हम एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे और हमारे अगल बगल की जो दुनिया है उसके साथ में हमारे संबंध दृढ़ करेगी। यूनिटी इज आवर एम। तो ये सभी जो 12 के 12 जो ट्रेडिशंस है उनके पीछे का हमारा ध्येय है हमारी एकता को बनाए रखना। तो ये हमारा जो अंतिम जो चरण जो है ये हम यहाँ पर खत्म करते हैं दोस्तों। इसके आगे कुछ है क्या मेरे पास? यस, बिल डब्ल्यू वो जो 12 पॉइंट्स टू सिक्योर आवर फ्यूचर जो आर्टिकल जो लिखना उसने शुरू किया था उसको अंत करता है वो इस वाक्य के साथ, आवर 8 ट्रेडिशंस आर वी ट्रस्ट सिक्योरली एंकर्ड in those wise precepts, charity, gratitude and humility. तो वो कहता है कि हमारे ये जो 12 ट्रेडिशंस है हमारा विश्वास है कि इनके मूल में 3 सयानेपन के भाव है, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। यानी दानशूरता, ग्रेटिट्यूड को क्या बोलेंगे हम लोग, आभार और नम्रता। नॉर हैव वी फॉरगॉटन प्रूडेंस, और साथ ही साथ हम लोग विजडम यानी प्रूडेंस या सयानापन हम भूलते नहीं है। मे दीज वर्च्यूज एवर स्टैंड क्लियर बिफोर अस इन आवर मेडिटेशंस। मे अल्कोहलिक्स एनोनिमस सर्व गॉड इन हैप्पी यूनिजन फॉर सो लॉन्ग एज ही मे नीड अस। तो ये 4 तत्व हमारे मेडिटेशन में हमेशा रहने चाहिए, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड प्रूडेंस। सद्भाव, आभार, नम्रता और सयानापन, ये 4 तत्वों के ऊपर हमारा ये 4 तत्वों का हमने हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये ईश्वर की सेवा में एकता में बने रहे तब तक जब तक वो चाहे कि हम बने रहे। इस भाव के साथ में वो इस आर्टिकल को खत्म करता है और ये ट्रेडिशन का जो ये एसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग भी इन्हें यहाँ पर रोक देते हैं, खत्म करते हैं। तो यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
It was fun discussing 12 traditions. अगर किसी के सवाल है तो हम लोग जरूर इस समय ले सकते हैं, या किसी को कुछ अनुभव कथन करना है तो जरूर यहाँ पर ले सकते हैं. Over to you, चंदू. थैंक यू भूषण. दोस्तों, आप कोई शेयरिंग करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं. मेरा एक सवाल था भूषण और पूरे ग्रुप से कि आज 12वां एडिशन हो गया है, तो जूम का हम क्या करें अभी. इस जूम का ये 16 तारीख को फिर रिबिल हो जाएगा. तो जैसे लकी भाई बोल रहे थे, कुछ समय के लिए अगर ब्रेक लेना है तो जरूर ब्रेक ले सकते हैं. क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, वरना बेकार हाँ, में तो पैसे रिन्यू जाना ना है. करे, बेटर वही रहेगा ना. लेकिन पहले सब ग्रुप पे एक दफा डाल दीजिए. ये हमने 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशंस का पूरा डिस्कशन खत्म होने तक लगभग 19 लोग अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. हम्म, तो मैं समझता हूँ इनका सभी का मत लेना उतना ही महत्वपूर्ण है. इसीलिए तो दोस्तों प्लीज कृपया आप ग्रुप में थोड़ा एक अपना एक वन लाइनर, लेकिन वो कैसे लिखेंगे, सिर्फ एडमिन ही लिख सकते हैं. अच्छा, वो वोटिंग डालते हैं, पोल पोल डालते हैं. पोलिंग करो. ओके. यहाँ पर कोई कुछ अपना मत प्रदर्शन करना चाहता है? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? दोस्तों, हाँ बोलिए ना. सर मैं आनंद बोल रहा हूँ वर्धा से. हाँ सर, हेलो. बोलिए ना आनंद. सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसा हमने अभी ट्रेडिशन वगैरह देख लिए, तो एज विल सीजिट वगैरह आपके मार्गदर्शन में हम लोग नए लोग समझना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? सो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे अभी चंदू भाई ने कहा कि जब भी हम लोग ने स्टेप्स के बारे में डिस्कशन चालू किया था तो लगभग कुछ 70-80-100 लोगों ने बोला था कि स्टेप पे डिस्कशन होना चाहिए. वहां से जब स्टेप्स का डिस्कशन पूरा हुआ और ट्रेडिशंस पे आए तो शुरुआत में 40-50 लोग थे और अभी आते आते हम लोग 19-20 बचे हुए हैं. जी राइट. सर. तो अगर सभी को लगता है कि ये यूजफुल है तो इस प्रकार से किया जा सकता है. नहीं तो क्या होता है कि एक आध दो व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर मेजॉरिटी लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं है तो यह शुरू करने के बाद में वो बीच में रुक नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, आधा अधूरा उसको छोड़ नहीं सकते हैं. लेकिन फिर अगर लोगों का प्रतिसाद नहीं रहेगा तो हम लोग बन जाते हैं वो शुक्रवार के लिए. हर शुक्रवार को ये समय के लिए हम लोग बंध जाते हैं. लेकिन ज्वाइन होने वाले मेंबर्स को अगर सचमुच उसमें दिलचस्पी है तो वो करने जैसा होता है. सो जैसे चंदू भाई बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये निर्णय लेना चाहिए कि थोड़े समय के लिए अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले सकते हैं, ताकि हम लोग भी फ्राइडे को दूसरे किसी मीटिंग में जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये फ्राइडे हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है. तो हमें भी थोड़ा सा बाकी जो समूह में जाना, इनवाइट आते हैं, हम जा नहीं सकते हैं, तो वो कर सकते हैं. या अगर सब लोग बोलते हैं, जैसे किसी ने अभी यहाँ पर डाला है कि बिग बुक स्टडी करते हैं, तो दैट इज द सेकंड ओपिनियन कि हम लोग उस प्रकार से कुछ एक दूसरी किताब ले सकते हैं. वो फिर वो बिग बुक है, ए कम्स ऑफ एज है, सर्विस मैनुअल लेना है, या डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स लेना है, या पास इट ऑन लेना है, कोई भी किताब जो है वो लेना है. वो जैसे सब लोगों की मर्जी. सब लोग अगर ज्यादातर लोग इस विषय में अपना मत प्रदर्शन करते हैं तो इट विल बी इजियर. तो अगर एक अच्छा वो गूगल फॉर्म बनाते हैं चंदू भाई, और उसमें हम लोग सभी मतदान करके देख सकते हैं कि मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए. जी सर.
मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो चैट डाल दी है, पोल डाल दी है, आप देख सकते हैं. जी. As we have completed the discussion of on 12 steps and 12 traditions, do you wish to continue with other AL related meetings? Yes, AL literature reading. No, let's take a break. Or keep a general meeting, general sharing meeting. या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि अगर वो 1.5 घंटे की मीटिंग है तो 1 घंटे का जनरल शेयरिंग और आधे घंटे का स्पीकर. ऑल्सो एक किसी ने सुझाव दिया था कि थॉट फॉर द डे, आज का जो विषय है 365 दिन के 365 थॉट्स होते हैं, तो आज का जो थॉट है वो थॉट के ऊपर मीटिंग. एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रख सकते कि हम कि भाई पॉडकास्ट जैसे चल रहे हैं अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में, एक पॉडकास्ट तैयार करते हैं, एक आदमी सवाल पूछेगा और दूसरा आदमी जवाब देगा और सब लोग उसको सुनेंगे. एक पॉडकास्ट जैसा अपने जर्नी के बारे में या कुछ डिटेल में जानने के लिए कि जीवन में उतार चढ़ाव कैसा है, ऐसा आधा घंटे का है, पौने घंटे का, ऐसा हम नहीं कर सकते. कि अभी जैसे पॉडकास्ट होते हैं उसमें बहुत सारा निकल के आता है लोगों के पास से, तो ऐसा भी सेशन हम रख सकते हैं, एक नई शुरुआत पॉडकास्ट के द्वारा. और ये तो हम अल्कोहलिक एनोनिमस में कर रहे हैं, बाहर जाने का तो कोई है ही नहीं. जैसा मतलब लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पे ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, झूम पे ना, झूम प्लेटफॉर्म पे एक आदमी सवाल पूछेगा और वो दूसरा आदमी जवाब देगा, और वहां पे अगर उसको पिक्चराइजेशन करना है तुमको तो पिक्चराइजेशन भी करो, और नहीं करना है तो आपका मुंह ब्लॉर रख दो उसमें. क्योंकि पॉडकास्ट में क्या होता है कि अभी जो लोगों के पास है ना, समय नहीं है सब अभी ये सब चीजों का. अभी इसमें कैसा आप डायरेक्ट मुद्दे की बात करना है आपको जो भी करना है तो वो मुद्दा उस पे लाओ और वो मुद्दे पे सवाल बनाओ और उसके ऊपर आप जवाब दो, तो उससे क्या क्लियरिटी ज्यादा आएगी फेलोशिप के अंदर. तो वो कहीं से भी हो सकता है. किसी ने जैसा एसबिन सीजीट का देख लिया, सवाल पूछ लिया आपको कि ये किस संदर्भ में लिखा है, या आपके जीवन की बात है, या ऐसा कुछ सवाल तैयार करने वाला व्यक्ति अगर कोई होगा तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो सकता है. जैसा लक्की और अपने भूषण भाई ने और आपका वो लक्की भाई ने, एक मैंने देखा है पॉडकास्ट कहीं पे, आप एक सवाल पूछ रहा है और एक उसका जवाब दे रहा है, तो वो बढ़िया है. अभी पॉडकास्ट बहुत चल रहा है ये अभी. तो अपना अल्कोहलिक एनोनिमस में ये आएगा तो यानी सभी चीजों को न्याय मिल सकता है इसमें कि भाई बिग बुक के संदर्भ में 4 स्टेप के बारे में आपके क्या सुझाव है. जैसे कि पहली किताब लिखने के बाद दूसरी किताब लिखने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान लिखने के पीछे का क्या संदर्भ है, और वो सब बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर, यानी सभी चीजों का उसमें डिस्कशन आ जाएगा. बहुत बढ़िया होगा ये, बहुत लोग आएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नया शुरुआत है, पॉडकास्ट चालू करो आप अल्कोहलिक एनोनिमस में, क्योंकि आपके ग्रुप में क्या ओल्ड टाइमर है और आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप बहुत ज्यादा, जो आदमी घुमा फिरा होता है उसको थोड़ा नॉलेज यानी एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसका सबको फायदा होगा. और एक नई शुरुआत होगी अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई हम पॉडकास्ट ला रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, और सवालों के द्वारा जो राहुल. ओके राहुल, संतोष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक शराबी हूँ. थैंक यू चंद्र जी आपकी सर्विस के लिए. थैंक यू भूषण जी, लक्की जी ये सर्वर के लिए, और अश्विन जी हमारे साथ मीटिंग में नहीं है बट उनको भी थैंक्स. भूषण जी एक सवाल था, जैसे अभी हाइपोथेटिकली मतलब मैं मान लीजिए मैं थाना में रहता हूँ और मुझे कर्जत से एक फोन आता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है उनके फैमिली मेंबर से. तो अब वो वहाँ करजत के मान लीजिए मैं 2 बंदों को जानता हूँ, तो उनका नंबर शेयर करने से पहले क्या मुझे उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो भी परिचित हो और होना चाहे एनोनिमिटी भंग हो, मतलब ये एक ये तो सवाल था. नॉर्मली हमारा हाँ जी. एक मीटिंग लिस्ट है संतोष जी, अपना एक मीटिंग लिस्ट हाँ, है, राइट? हाँ, एक MRS अपना जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस सेवा समिति है उनका पूरे महाराष्ट्र का एक मीटिंग लिस्ट है.
वो मीटिंग लिस्ट में मीटिंग का नाम, मीटिंग के डेज और वहां के 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऐसा जी जी पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जहां पर ऐसे छपे हुए नंबर है, इसका मतलब वो सदस्य तैयार है अपना नंबर देने के लिए, या अननोन अननोन मेंबर्स के साथ बात करने के लिए वो तैयार है। ओके, जी तो जी जी ये नंबर्स आप इजीली शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने जानबूझकर नाम नंबर दिए हैं, नाम नंबर दिए हैं इस सेवा के लिए। लेकिन जी जी अगर मैं वो सदस्य को अच्छी तरह से जानता हूं और वो सेवा में लगा हुआ है, ये मैं जानता हूं, तो फिर भी मैं उस व्यक्ति का नंबर शेयर कर सकता हूं। लेकिन मैं अगर मेंबर को जानता नहीं हूं और वो सेवा में है या नहीं, सोबर है या नहीं, इसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे में मैंने डायरेक्टली नंबर देने के पहले बेटर है कि मैं जांच लूं वो मेंबर को, उससे साथ बात करूं और उसको पूछूं कि भाई आपका नंबर दिया तो चलेगा क्या, कि करजत का एक कॉल है, आपका नंबर दिया तो चलेगा क्या। वो नॉर्मल एटिकेट ये डिमांड करती है कि पहले मैं उसके साथ पूछूं और फिर उसको पास ऑन करूं। जी। थैंक यू सर। और एक और कोई सवाल है या मीटिंग का समय हो चुका है ऑलमोस्ट? दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया 15 तारीख तक वो पोलिंग कर दें। हेलो, हाँ जी। सॉरी कॉल आ गया था। एक सवाल और तो जन जागरण वगैरह जो नॉर्मली आपके हमने जो चेकलिस्ट देखी अभी उसके 9th पॉइंट वो सब कवर कर रहे थे, बट वो जन जागरण सभा में या ऐसे जो पब्लिक अवेयरनेस होती है तो उसमें शेयरिंग कहाँ तक मर्यादित रखना चाहिए। और जैसे ये क्या करके मुझे वो बताकर चुप रह जाना, या वहाँ पे मेरी स्टोरी भी इन जनरल वे शेयर करनी है, या जिस तरह से जो ओरिजिनल स्टोरी मैं यहाँ अपनी मीटिंग्स में शेयर करता हूँ उस तरह से, तो वहाँ पे कितना कुछ ऐसा लिमिटेशन, मतलब अपने आप पे क्या बोलते हैं कैप लगाना उचित है या कैसा है, मतलब थोड़ा एक क्वेरी थी। बराबर। सो नॉर्मली जो लोग जन जागरण सभा अरेंज करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनको इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। हम लोग जब भी समाज के सामने बात करते हैं तो हम लोग एक आध शेयरिंग डिसीज के ऊपर रखते हैं, एक आध शेयरिंग रिकवरी के ऊपर रखते हैं, एक आध शेयरिंग व्हाट इट डज एंड व्हाट इट डजंट डू, इसके ऊपर रखते हैं। और फिर सवाल जवाब रखते हैं। और जब भी हम लोग शेयर करते हैं तो वी शेयर इन अ जनरल वे। हम लोग कोई भयानक कहानी नहीं बताते हैं, हम लोग वी शेयर इन अ जनरल वे कि शराब पीने के पहले हम कैसे थे, शराब पीने के दौरान क्या हुआ, और ये का कार्यक्रम लेने के बाद में आज हम कैसे हैं, ये हम लोग जनरल वे में शेयर करते हैं। हम्म, तो इसके ऊपर अधिक जानकारी चाहिए तो अलग अलग रिसोर्सेस है जो सर्विस मटेरियल में आते हैं। सो ए इन योर कम्युनिटी, वर्किंग विथ योर कम्युनिटीज के ऊपर जो है वहां पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं। जैसे आपने कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आपने स्मार्टली ड्रेस होके जाना चाहिए, स्लीपर पहन के, गंदे कपड़े पहन के, फटे कपड़े पहन के, बीड़ी पीते हुए, पान थूकते हुए ऐसे आपने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको आपका चेहरा, ये ए का चेहरा करके आपको जाना जाता है। तो आपने प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए, आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बोलते समय गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। भले कहानी में आपके भले भयानक ऐसे अनुभव रहेंगे भी, फिर भी आपने उसका उच्चार उस प्रकार से नहीं, यानी जो जनरल डिसेंसी होती है कम्युनिटी पब्लिक स्पीकिंग की, उसकी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। जी जी जी। ओके दो वैभव। छोटे से और एकदम वन लाइनर, दो छोटे से प्लीज।
एक सेकेंडली मैं विद माय एम्प्लॉयर, मतलब जो इमीडिएट बॉस है, उनसे शेयर कर सकता होता कि मैं ऐसी मीटिंग में जाता हूँ। तो मान लीजिए मेरी मीटिंग थर्सडे को होती है तो या ट्यूसडे होती है, तो मुझे जरा जल्दी जाना है। एक ये था। और सेकेंडली स्पॉन्सर की एनोनिमिटी विद इन द ग्रुप या विद इन ए भी मेंटेन करनी चाहिए या नहीं विद मेंबर्स। जैसे मान लीजिए आप ही मेरे स्पॉन्सर हैं, तो क्या मैं ये मीटिंग में शेयर कर सकता हूँ कि मैं मेरे स्पॉन्सर कृष्ण जी की वजह से मैं आज सुबह हूँ? मतलब एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ। बराबर बराबर। सो यूजुअली हम लोग व्यक्तियों को क्या उसको हरभरे के पेड़ पे चढ़ाते नहीं है। किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार से जिक्र करना यानी वो व्यक्ति को उस तत्व से ज्यादा महत्व देने जैसा होता है। तो मैं अगर हर मीटिंग में जाके मेरा स्पॉन्सर अमुक है, मेरा स्पॉन्सर तमुक है कर रहा हूं, तो मैं शायद अपनी इमेज बनाने का कोशिश कर रहा हूं कि स्पॉन्सर की पॉपुलैरिटी को लेकर मैं अपना इमेज बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो इसीलिए स्पॉन्सर का नाम लेना जरूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप में आपने क्या किया ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपका ग्रेटिट्यूड डे है और उस समय आप आपका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हो, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने आपको विशेष सहायता की है आपकी सोबराइटी में या आपकी मुश्किलों में, तो ऐसे समय में आप नाम ले सकते हो, क्योंकि विद इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो और एम्प्लॉयर भाव वाला आपको सवाल, और एम्प्लॉयर वाला। हाँ, सो एम्प्लॉयर वाला। सो फॉर ए मेंबरशिप वी शुड नॉट गेट एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी मैं मेरी ए सदस्यता के लिए मैंने किसी से कोई विशेष प्रिविलेज नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने ए सदस्यता के बारे में अपने एम्प्लॉयर को बताता हूं तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। इनफैक्ट मैंने बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे कंपनी में दूसरे किसी को अगर समस्या है तो उसे भी मैं मदद कर सकता हूं। और मैं अपने आपके ऊपर किस प्रकार से काम कर रहा हूं इसके प्रति अगर आप आपके समुदाय में, अपने सहकारियों में, अपने फैमिली में, अपने समाज में बताते हैं, तो ये सही है। जैसे आज हम लोगों ने अनामिकता के जो पूरा जो प्रोसेस जो सुना आज, शायद आप शुरुआत से थे क्या आज? हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ, तो उसमें भी बताया ना कि सबसे पहले मैं घर में बताता हूँ, फिर मैं अपने पादरी या डॉक्टर को बताता हूँ, और फिर बाद में अपने जहां मैं काम करता हूं वहां बताता हूं, मेरे बॉस और मेरे सहकर्मचारियों को बताता हूं। तो बिल्कुल आप आपके जो भी आपके अगल बगल में लोग हैं उनको आपकी ये सदस्यता के बारे में जानकारी होना, ये अनामिकता का भंग नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू। वैभव, वैभव आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि मीटिंग का समय हो चुका है, तो क्विकली प्लीज। जी जी। हाय पुशान, लकी और चंदू, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल था, कई बार मीटिंग में नए मेंबर आते हैं लेकिन कई कारणों से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो जो मिड टाइमर या ओल्ड टाइमर है उनकी ये थोड़ी जिम्मेदारी रहती है कि क्यों न्यू कमर हमारे यहाँ ज्यादा टिकते नहीं है या हमसे कोई गलती हुई है उन्हें समझाने में। तो ऐसे बोला गया है कि जैसे फोर्थ स्टेप में हम इन्वेंट्री लेते हैं अपनी आपकी, वैसे ग्रुप इन्वेंट्री भी रहती है, ऐसे मैंने सुना है। तो ऐसा ग्रुप इन्वेंट्री अगर ली समझो तो थोड़े एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। तो ऐसी ग्रुप इन्वेंट्री अगर लेना है तो किस प्रकार से ले सकते हैं, इस पे थोड़ा कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, जैसे मेरी वैयक्तिक इन्वेंट्री होती है वैसे ही ग्रुप इन्वेंट्री होती है, वैसे ही हर सर्विस बॉडी की भी इन्वेंट्री होती है। ओके, सो मैं जिस कारण के वजह से हम लोग बने हुए हैं वो कारण हमारे से पूरा हो रहा है कि नहीं। जैसे ये समूह का प्राथमिक उद्देश्य है संदेश वहन करना, तो ये संदेश वहन का कार्य हमारे यहाँ से व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं, ये प्राथमिक उद्देश्य तो होता है। और यूनिटी हमारी बरकरार है कि नहीं, हमारे यहाँ पर यूनिटी को धोखा करने वाली कोई चीज है, कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे बर्ताव हो रहे क्या,
तो एक ग्रुप, ये जो पैम्पलेट है उसके अंत में शायद पेज 50-52 के आसपास में ग्रुप इन्वेंटरी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है और कुछ सवाल उसमें ग्रुप इन्वेंटरी के ऊपर दिए हुए हैं। टू गेट यू स्टार्टेड, यानी ग्रुप इन्वेंटरी करने की प्रक्रिया कैसे शुरुआत करे, उसके लिए वहां पर नेचर ऑफ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रेडिशंस चेकलिस्ट की बात की, हम लोगों ने पूरे 12 ट्रेडिशंस पढ़ते पढ़ते, बहुत से समूह जो है ये 12 ट्रेडिशंस की चेकलिस्ट है, उसके ऊपर अपनी ग्रुप इन्वेंटरी करते हैं। क्या हमारे ग्रुप में ट्रेडिशंस का पालन बराबर हो रहा है क्या, एकता के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं क्या, जो उद्दिष्ट हमारे समूह के है वो समूह पे हम लोग जुड़े हुए है क्या। तो ट्रेडिशन चेकलिस्ट भी एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हम अपनी ग्रुप इन्वेंटरी करते हैं। तो ग्रुप इन्वेंटरी कैसे करते हैं, तो यूजुअली जो होम ग्रुप के सदस्य है, जो लोगों ने आपके समूह को होम ग्रुप लिया है, ऐसे सदस्य सब मिलकर अभी हम लोग रिवाइवल ग्रुप में जो करते हैं, हम लोग कहीं बाहर गांव चले जाते हैं, छुट्टी लेकर पिकनिक पे चले जाते हैं और पूरे रात भर बैठकर वो ग्रुप इन्वेंटरी के जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सो सब राउंड करके बैठते हैं और एक एक सवाल पढ़कर उसके ऊपर किसको क्या मत व्यक्त करना है वो मत व्यक्त करके फिर वो पूरी रात भर प्रक्रिया चलती है। वहां पर अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो जिक्र होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसका पैसिफिकेशन होता है। अनबन हुई होगी तो दोनों सामने सामने बैठ के अपने मनमुटाव को मिटा देते हैं और एक फ्रेश माइंडसेट से दोबारा हम लोग अपने ग्रुप को बनाना शुरू करते हैं। ये उसका हेतु होता है।